असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
Namaste, everyone. Good morning. Good to see you all. Good morning, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Thank you. Thank you so much. Sunday morning. So, how you all are feeling? Fine, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Priyanka ji, Sneha ji, Bhumi ji. Bhumi ji was the first one to enter the session. Good to Good see you. morning. Yes, Sandeep ji. It seems that you are sitting outside in the nature, Sandeep Yes, ji. ma'am. Yes. Yes, ma'am. So, you are joining from which place? Ma'am, Dehradun. Okay, great. ओके नमस्ते ईश्वर जी शशिकांत जी आपने प्रैक्टिस किया मुद्रा यस रेखा जी ओम जी पूजा जी रीता जी श्रद्धा जी यशिका जी पूनम जी वाह so let's begin our session people will keep joining we will start our session with the three omkar and followed by the prayer guru mantra. So everybody sit straight, spine erect. If you know, you can chant along with me, or else you just observe the prayer, right? So sit straight, spine erect, gentle smile on the face. Take a Gyan Mudra in your palms, index finger, thumb tip together, and rest three fingers are straight. Palm facing upward, place them on your thighs. Yes, good morning, Poonam ji. Take a deep breath in. Join both the palms. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Sahanavavatu सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् Gently bow down. Remember the purpose being in this moment. Remember the goal in your life and gently come up. Gently rub your palms. Generate heat, cup your eyes, energize your eyes. Gently blink your eyes inside the cup few times. Massage your eyes and open your eyes. Namaste once again everyone. संडे को जल्दी उठ के आना और क्लास में बैठना इट्स अ बिग बिग जॉब I appreciate all of you. Thank you so much for joining today. Okay, so we all have come here to learn about mudras, right? And how many of you have attended previous session?
I know Sashikant ji was there. And I'm yes, also, ma'am. Meenakshi ji, Parul ji, Rekha ji. Yes, good. So, who all attended and have you practiced mudra after attending the session? How many of you practiced? Few mudras. Yeah, whatever you learn. Sorry, not getting your audio and video as well. Maybe your network is weak. All other are able to see me and hear me. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Maybe you can rejoin and see that if you are able to see and hear me. Okay. So, Meenakshi ji, could you practice Uh, whatever you yes, ma'am. learned? Yes, ma'am. Okay. I've Could you? learned about all the uh, pranas like Agni, Okay. Pranvayu, and Akash Tattva, and then Prithvi and Huh. Jal. Very good. Very good. Excellent. Excellent. So, this is not pranvayu, it is a vayu. It's a vayu Vayu. tattva. Yeah. Very good. And so, these are not these are tattvas. Okay, they are known as tattvas. So actually, our mudra therapy works on the panch tattvas. Yat pinde tad brahmande. जो जिससे हमारा शरीर बना है, जिन 5 तत्वों से वही 5 तत्व जो है हमारे यूनिवर्स में हमारे आसपास है और उन्हीं तत्वों से हमारा शरीर बना है, राइट? तो जब हमारे आसपास के वातावरण में कोई बदलाव आता है तो हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि हमारे शरीर में भी कुछ बदलाव आता है या वो हमारे शरीर को अफेक्ट करता है? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? यस, स्नेहा, स्नेहा जी, मीनाक्षी जी, संदीप जी, ईश्वर जी, वेरी गुड, अमन, अमरप्रीत जी, यस. सो या प्रियंका जी ऑल्सो अग्रीज. दैट मीन्स कि अगर आसपास का वातावरण हमें असर कर सकता है, हमारे बॉडी में चेंजेस ला सकता है, सो देर इज अ कनेक्शन. यत पिंडे तद ब्रह्मांडे. देर इज कंप्लीट कनेक्शन. हम उन्हीं 5 तत्वों से बने हैं. तो अगर वो बदलाव आता है और वो हमारे शरीर में जो 5 तत्व हैं, इट मीन्स वी हैव पावर टू balance also. If there comes imbalance because of the external environment, we can balance with those same 5 elements in our body. Do you think is it possible? Yes, it is possible. Okay. जैसे बाहर बहुत गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं, हम एसी चलाते हैं and we try to balance the heat in our room, right? हमने एसी चलाया तो हमको ठंडा लगेगा. द सेम वे बाहर बहुत गर्मी थी, हमने एसी चलाया और ठंडा लगा, तो हम जो है हमारे हाथों में जो एनर्जी है, हमारे बॉडी में जो एनर्जी है, उसी का रीडायरेक्ट यूज करके उसी एनर्जी को हम सिग्नल देके हमारे फिंगर्स के थ्रू हमारे बॉडी में, ब्रेन में सिग्नल्स देके हम उसमें चेंज ला सकते हैं. ये तो हमने एक्सटर्नली किया कि हमने एसी चलाया तो हमको ठंडा लगा, बट हमारे बॉडी में इतना पावर है कि हम खुद का अंदर का एसी ऑन करके, बाहर का एसी ना ऑन करके, हम अपने अंदर के एसी को ऑन करके भी ठंडक पहुंचा सकते हैं. दैट इज द पावर विद इन अस. ओके. एंड इट इज प्योर साइंस. इट इज नथिंग अ मैजिक, बट इट क्रिएट्स मैजिक व्हेन यू डू इट. Because we always like to see the magic, but have you ever thought that our existence itself is a magic?
how this machine is working. I call this body as a machine. It has software and hardware both, right? So hardware is this physical body and software is our Shukshma Sharir. And when we are working with this mudras, we are working with the not only with the hardware but the Sukshma Sharir also. That is our software. सॉफ्टवेयर में बहुत कुछ है. सॉफ्टवेयर में एक गड़बड़ी आने से आपके कंप्यूटर में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है. यू कैन नॉट फंक्शन वेल, राइट? द सेम वे हमारे बॉडी में भी थोड़ा सा भी सॉफ्टवेयर में कहीं पे गड़बड़ी आया तो इट कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, राइट? ठीक है. तो अब जो है, आज मैंने सोचा था कि ये जो मुद्राएं हैं वो क्या हमारे रिलेशनशिप में भी हेल्प कर सकती हैं? डू यू अग्री और यू हैव अ क्वेश्चन? हमारे अगर रिलेशनशिप इश्यूज हैं लाइफ में तो क्या वो हेल्प कर सकती हैं? मैम रिलेशनशिप में कैसे करेंगे? वो तो जस्ट कम्युनिकेशन से सॉर्ट आउट होगी ना चीजें. मैम करेक्ट. आई थिंक करेगा. नहीं कैसे? मैम, ये रिंग फिंगर होती है ना, बिकॉज बोलते हैं ये रिंग फिंगर हार्ट से रिलेटेड है समथिंग. ओके. ओके. तो रेखा जी बोल रही हैं कि करेगा. अमनदीप जी बोल रहे हैं कि वो तो कम्युनिकेशन से होता है, तो वो कैसे मैम होगा? करेगा. मैम करेगा, क्योंकि जैसे आपने बोला कि करेगा. हमारी बॉडी फाइव तत्वों से बनी है, वैसे जो पार्टनर है उसकी भी बॉडी वही 5 तत्वों से बनी. यदि उन दोनों का कोऑर्डिनेशन हो जाए तो ये हो सकता है. तो सबसे पहली बात तो यही रहेगी ना कि दूसरा पर्सन भी करने के लिए रेडी होगा. तभी तो होगा ना. पहले कम्युनिकेशन ही तो होगी, तभी तो आप दोनों मिलकर मुद्रास का अभ्यास करोगे आई थिंक. या एक के करने से दूसरे पे ट्रांसफर हो जाएगा. वेरी गुड. आई एम लाइकिंग दिस डिस्कशन. कीप इट ऑन एंड वी नो विल कम टू नो. ओके. नो, आई थिंक कि जब हम खुद करेंगे मुद्रास को तो हम खुद को हाँ. बैलेंस कर पाएंगे. तो दूसरे को हमें बैलेंस नहीं करना, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को करना है. लेकिन दूसरा अगर वेरी गुड. बैलेंस ही नहीं करना चाहता, उसका प्रॉब्लम तो माइंड. हमारे माइंड में है ना, उनके माइंड प्रॉब्लम में नहीं सिर्फ है. एक ही के माइंड से नहीं आती ना. दोनों ताली ताली बजती हैं, सभी ताली होती है, नहीं एक से कहाँ बजी. अमरप्रीत जी, लड़ाई तो तब बंद होती है ना जब एक शांत होता है. तो आई थिंक एक शांत हो जाएगा, आप अपने आप को सुधार लोगे तो दूसरा तो आपको ऑटोमेटिकली लगता है थोड़ा दूसरा सुधर जाएगा? सुधर जाते हैं. मुझे लगता है एटलीस्ट कि एक्चुअली जो मुद्रा है या कोई भी आसन है, इससे हम अपने आप को कूल करते हैं, काम करते हैं. जब हम अपने यस. आप को शांत कर लेते हैं तो सामने वाला चाहे कितना भी कोशिश करे, जो आउटपुट है इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द रिएक्शन टू द इवेंट. जो एक फेमस यस फॉर्मूला शशिकांत ई जी, आई एम प्लस एग्री आर विद इजिकल यू. टू ओ. जब हम अपने आप को काम कर लेंगे, हम अपने आप को कूल कर लेंगे, हम अपने सामने वाले के प्रवोक पे रिएक्ट ही नहीं करेंगे यस क्योंकि यस. हमने अपने आप को कूल कर लिया है. तो धीरे धीरे, हो सकता है धीरे धीरे होगा, लेकिन धीरे धीरे सामने वाला भी उस बात को समझ लेगा और वो भी फिर हमारी ही वेवलेंथ पे आ जाएगा. ये मेरा समझ. कैसे समझ आई लेगा? एग्री. क्वेश्चन यही एग्जैक्टली. आता है. यस यस अगर एग्जैक्टली. दोनों में आप भी अपने वन बाय वन. आप एग्जैक्टली मुझे बोलना है कि अगर दोनों में भी अग्नि है तो हमारा अग्नि हम लोग कूल डाउन करके भी शांत कर सकते हैं ना. अगर हम शांत है तो आगे वाला मतलब आर्ग्यू करने के लिए रेडी है, फिर भी हम लोग शांत है तो वो आर्ग्यू करते ही बैठेगा ना. जो हम लोग शांत है तो फिर आगे वो सोच के खुद ही चुप हो जाएगा ना, आर्ग्यू करते नहीं बैठेगा. प्रॉब्लम तो वहीं पे ही रही ना. आप मान लो चुप हो गए, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम थी एक. ठीक है, आप चुप हो गए, आप शांत हो गए, आप कूल डाउन हो गए, आप एक तरीके से संत बन गए. बट प्रॉब्लम इज देयर. प्रॉब्लम कहाँ सॉर्ट आउट हुई? क्वेश्चन इज आग हाँ, लग देयर. लेकिन रही है, कितनी लेकिन देर आग लग आर्ग्यू रही है, हम भी करेगा? अपना करते रिएक्शन, करते आग लग रही है, हम भी करते अपना रिएक्शन दे रहे हैं, हम घी डाल रहे हैं उसमें. आग बराबर कंटिन्यूस जलती जा रही है क्योंकि सामने वाला आग लगा रहा है, हम घी डाल रहे हैं. जब हम घी डालना बंद ही कर देंगे तो आग कितनी देर तक जलेगी? थोड़ी देर एग्जैक्टली बाद तो अपने आप एग्जैक्टली. शांत हो यस जाएगी. यस. क्या और रियल लाइफ मैम में ऐसा ऐसा बोलते पॉसिबल हैं है? ना कि कोई मतलब इट दुखी इज है या पॉसिबल. कोई बहुत अमनप्रीत जी, अमनप्रीत मैम. जी, इट इज वेरी मच पॉसिबल. क्योंकि मैंने आज ये टॉपिक इसीलिए लिया
क्योंकि आजकल जो है हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिलेशनशिप को लेके हैं, राइट? कहीं ना कहीं इट कैन बी विद द, अगर स्टूडेंट है तो उनके पीयर्स के साथ है, अगर घर में हस्बैंड वाइफ है, मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ है, ये हर जगह ये रिलेशनशिप इश्यू आता ही है। और उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने कहा कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट क्या हमको अफेक्ट करता है। यस। तो ये एनवायरनमेंट में सिर्फ आपके हवा पानी नहीं है, आपके आसपास के लोग भी हैं जो आपकी एनर्जी ले भी रहे हैं और आपको एनर्जी दे भी रहे हैं। कई लोग जो होते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं, कोई आता है तो आपको बड़ी खुशी होती है, आपको लगता है अरे वाह तुमने तो दिन बना दिया, आज आ गए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उससे बात करके आपको अच्छा लगता है, करेक्ट? और वो एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है आपके आसपास का, आपके अंदर का, इजंट इट? होता है कि नहीं? और यस कोई होता है। आता है तो ऐसे होता है अरे बाप रे आज मैंने कहाँ इसको सुबह सुबह देख लिया, मेरा तो दिन बिगड़ गया। अब वो दिन बिगड़ गया, ये थॉट जो है वो आपका, वो ही दिन बिगाड़ता है, क्योंकि आपने उस थॉट को एनर्जी दे दी, इजंट इट? तो ये जो है, आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि ये मुद्राएं रिलेशनशिप भी सुधारती हैं। अब बहुत सारी रिलेशनशिप बिगड़ती क्यों है? एक तो आपने अमनप्रीत जी आपने सही बोला कि कम्युनिकेशन, राइट? तो कम्युनिकेशन जो है, जब आपका कम्युनिकेशन सही होगा तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी रिलेशनशिप में। मगर जब आपका कम्युनिकेशन बिगड़ता है तभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। तो वो कम्युनिकेशन हम कैसे सुधार सकते हैं? एक तो है अवेयरनेस, कि हमारे अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम हमारा कम्युनिकेशन पास्ट एक्सपीरियंस बेस पे कर रहे हैं या फ्यूचर का सोच के कर रहे हैं? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट? अगर हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कुछ उस व्यक्ति के साथ ऐसा रहा है तो हमने उसको अंदर स्टोर कर लिया है, ओके? और वो उस बेस पे ही वो हमारा कम्युनिकेशन आगे चलता रहता है। इसलिए हम, अगर वो व्यक्ति उस वक्त उस थॉट प्रोसेस में नहीं है या उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है मगर हम उस पास्ट को लेके उसको हर वक्त रिएक्ट करते रहते हैं कि नहीं वो तो ऐसा ही है और वो ऐसा ही कर सकता है। अब वो आदमी बदलना भी चाह रहा है मगर हम उस इमेज को नहीं बदलते हैं और हमारा रिएक्शन या एक्शन वहीं से आता है। डू यू अग्री टू इट? ये जनरली होता है, करेक्ट? तो अगर हम, हमारा कम्युनिकेशन कब सुधर सकता है? जब हमारे अंदर वो अवेयरनेस आती है, ओके? वो अवेयरनेस आनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो कहाँ से आ रहा है, क्या मैं उसमें अपने आप में बदलाव ला सकता हूं? मैं ये एक कोशिश कर सकता हूं या कर सकती हूँ कि वो जो मैंने स्टोर किया था दैट वाज अ वन काइंड ऑफ अ इंसिडेंस। अब हो सकता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव वैसा ही हो, पर हमको उस व्यक्ति पे काम करना है या अपने ऊपर काम करना है? whom you want to help first? अपने अपने ऊपर ऊपर। काम करना है। सही। फर्स्ट अपने आप माई पे सेल्फ। फर्स्ट अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि आप कभी भी एक्सटर्नल चीजों को बदल नहीं सकते। क्या अगर आपके आसपास अभी साइक्लोन चल रहा है तो क्या आप साइक्लोन को चेंज कर सकते हो? नहीं। साइक्लोन में बहुत हवा धूल मिट्टी आ रही है तो सबसे पहला आप काम क्या करोगे? आप अपने घर की खिड़की दरवाजे सब बंद कर दोगे। साइक्लोन को तो आप अटका नहीं सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे आपने कब ये किया जब खिड़की दरवाजे सब बंद किए? क्यों किए बंद? क्योंकि आपके अंदर ये अवेयरनेस है कि अब अगर घर को धूल मिट्टी से या गंदा होने से बचाना है तो मुझे पहला काम करना पड़ेगा, ये खिड़की दरवाजे बंद करने हैं।
ताकि वो धूल मिट्टी मेरे अंदर आए ही ना। एम आई राइट? करेक्ट? तो जब आपने वो किया तो आधा काम तो आपका हो गया। बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स को आपने कुछ भी नहीं किया है, मगर आपका इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हो गया। आपके घर के अंदर जो धूल मिट्टी आ रही थी वो बंद हो गई। इसलिए आपको अभी बाहर जितना भी धूल मिट्टी उड़ना है उड़ने दो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यू आर इन अ सेफ जोन। सो व्हाट इज बेटर, टू बी इन अ सेफ जोन और टू बी इन दैट साइक्लोन में रहना? To be in a safe zone. करेक्ट? Be in a Ma'am, safe being zone. in a safe zone. राइट? तो जब आप ये सेफ जोन में आ जाओगे तो फिर आपको बाहर क्या चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका अगर कम्युनिकेशन सही हो जाए तो बाहर वाले के कम्युनिकेशन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज यू नो दैट व्हाट यू आर एंड व्हाई यू शुड टेक इट इन योर हार्ट और व्हाई यू शुड बी अफेक्टेड। क्योंकि आप उसको अगर ध्यान दोगे जो सामने वाला आपके साथ कर रहा है, तो वो आपको असर करेगा। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आप ये बुक ले लीजिए अपने हाथ में और आप वहां से पकड़िए। अमनप्रीत जी, आप पकड़िए, पकड़ने की कोशिश करिए। नहीं समझो पकड़ आपने सकता ये, मैं आपके सामने हूं और आपको मैं ये बुक दे रही हूँ, आपने वो बुक ले लिया, तो वो बुक किसके पास गया? मेरे पास। और अगर आपने नहीं लिया तो किसके पास रहा? आपके पास। बढ़िया। तो यही करना है आपके कम्युनिकेशन में। और नहीं ये तो इससे ये जो है, ये अवेयरनेस आती है, कहाँ से आती है? अगर आपको अपने मन को शांत करना है तो कौन हेल्प करेगा? जब हम आज मुद्रा की बात कर रहे हैं, तो वो जो अवेयरनेस लाना और अपने मन को शांत करने के लिए आपको हेल्प करती है ये ज्ञान मुद्रा। ओके? तो हमारा काम क्या है? हमारे खिड़की दरवाजे बंद करना और हमारे अंदर ये अवेयरनेस लाना कि ये जो बाहर का शोर है उसको मुझे अंदर आने देना है या नहीं देना है। क्योंकि जिस आदमी का अगर ये स्वभाव है कि वो जहां पे भी जाए वहां पे वो अपना गर्जन करता रहे, अपना प्रेजेंस दिखाता रहे और सबको परेशान करना, अगर वो उसका स्वभाव है, अगर वो हमारे अंदर अवेयरनेस आती है, तो हमारी ड्यूटी क्या है कि हमें उसको अफेक्ट नहीं होने देना है अपने आप को, क्योंकि हमारा काम है अपने आप को प्रोटेक्शन करना। राइट? क्योंकि जब आप उसको रिएक्ट ही नहीं करोगे तो वो कितनी देर रिएक्ट करेगा? जैसे शशिकांत जी ने कहा कि जब तक आप घी डालोगे तो अग्नि बढ़ती रहेगी, अगर घी ही नहीं डालोगे तो वो अग्नि कहाँ तक बढ़ेगी? सामने उसको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है तो वो समझ जाएगा कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं कुछ भी कर लूं। और जो अंदर जिसके अशांति है वो सामने, क्योंकि उसको उसका अपने साथ का कनेक्शन नहीं बन रहा है। अगर अपने आप के साथ कनेक्शन है, अपने अंदर अवेयरनेस है, तो वो बंदा वो करता ही नहीं। और कभी उसने कभी ये जाना ही नहीं कि शांत रहने से भी बहुत सारी सिचुएशन ठीक हो सकती है, तो वो हमेशा वो करता रहेगा। तो उस सिचुएशन में से निकलने के लिए आप और मैं एक ही चीज कहती हूँ कि बी द चेंज। आप अपने आप को जब चेंज करोगे तो आसपास का एनवायरनमेंट खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। मेरा यहाँ पे एक क्वेरी है कि ठीक ओके? है, आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना ढंग से समझा पाऊंगा, मतलब दिमाग में है चीज, आप शायद समझे। एक पर्सन है, राइट? तो वो बहुत ज्यादा, उसका नेचर ही है एंग्री, या फिर उसका नेचर ही है कि वो पंगे लेता रहता है। ठीक है, दूसरा पर्सन है वो बहुत शांत है। ठीक है, और वो लगातार कर रहा है। जैसे अभी आप एक एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि हमला हो रहा है, अभी युद्ध हो रहा है, राइट? ठीक है, तो अगर वो युद्ध करता रह रहा है, वो हमला करता जा रहा है, और वो आराम से बैठा रहे सिद्ध बुद्ध बन के, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। दूसरी चीज, मेरा एक और है
कि एक पर्सन जो मतलब शांत है, ठीक है, वो अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो उसके घर में ही है पर्सन, ठीक है, वो अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज करने के लिए रेडी नहीं है। तो लेकिन हम तो कहीं ना कहीं जा ही रहा है ना, पहुंच ही रहा है, रिलेशनशिप कहाँ सुधर रहा है, क्योंकि बिकॉज दूसरा पर्सन, हमने अपने आप को बदल लिया लेकिन दूसरा पर्सन अपने आप को बदलने के लिए रेडी नहीं है, राइट। ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं कि आप बहुत अच्छे हो लेकिन दूसरा आपका मुनाफा लेके चला जाता है, तो आपकी अच्छाई तो वहीं पे रह गई। मतलब दो तीन क्वेश्चंस मैंने रिलेट कर दिए। तो यहाँ पे कैसा है कि जैसे आपने कहा कि युद्ध हो रहा है, राइट? तो क्या हम शांत बैठ सकते हैं? तो हमारा सबसे पहला धर्म क्या है? टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। जैसे मैंने कहा कि जब बाहर स्टॉर्म चल रहा था तो आपने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। तो जब युद्ध हो रहा है तो वहां पे भी आपका स्वधर्म है दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ओके। तो ये यहाँ पे प्रोटेक्शन, आप फिजिकल युद्ध की बात करते हैं तब अलग है, तब आपको करना है, वो आपका धर्म है। जैसे गीता में अर्जुन को कहा गया है कि तुमको तभी शस्त्र उठाना है, वो युद्ध की बात हुई। पर यहाँ पे घर में हम तो युद्ध नहीं करते हैं, वाक युद्ध जरूर चलता है, वाणी का युद्ध चलता है, राइट? तो वो वाणी का युद्ध तभी चल सकता है जब हम अपनी वाणी से भी उस तरह का प्रयोग करें, तो वो बढ़ सकता है। तो वो तो हमारे हाथ में है। ऐसे ऐसे केसेस नहीं देखे गए कि जैसे हस्बैंड के थ्रू लेडीज को बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाता है, एंड होता है। बहुत सारे केसेस हैं, राइट, लेकिन महिला जो है शांत है लेकिन हस्बैंड शांत नहीं है, वो कुछ ना कुछ नुक्स निकाल ही लेता है, तो उस तो केस इसमें में तो। कैसा है, हाँ, इसमें कैसा है कि यहाँ पे रिलेशनशिप में क्या होता है कि महिला शांत है इसलिए जो हस्बैंड है वो उसका, मैं कहूंगी, गैर फायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें यू हैव टू लर्न टू सेट द बाउंड्रीज। आज मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने एक जगह पे एक स्टोरी सुनाई थी। तो उसमें ये कहा था कि आप जो है, आप किसी को डसो मत, मगर आपको उसको फुंकार दिखानी है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं डस भी सकता हूं। मैं डसता नहीं हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे में वो क्षमता नहीं है, बट आई एम कीपिंग काम फॉर माई कामनेस। तो आपको एक बाउंड्री सेट करनी होती है किसी के भी लिए कि तो आप इससे आगे मेरे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो That बेसिकली। has to be learned. See, this is a very big topic. We will not go so much into detail right now, but we can definitely discuss some other point in time. तो मेरा एक ही यहाँ पे पॉइंट है कि जब हमारे साथ ये होता है तो मुद्रा वहां पे कैसे हेल्प करती है। ओके। तो ये जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसमें आप करके देखिए इसका प्रयोग, क्योंकि मुद्रा बहुत पावरफुल है और वो पावर देती है आपको। आपके इसमें कई बार क्या होता है कि जो लेडी शांत है वो या तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, या तो वो उस झगड़े से बचना चाहती है, या तो वो कामली उस रिलेशन को मेंटेन करना चाहती है। ओके। कि चलो जाने दो, जाने दो, क्योंकि वो तो समझेंगे नहीं तो मुझे तो सहना ही है। मगर सहना नहीं है, सहना नहीं है इस तरह से कि आपको अपने अंदर का एक जो पावर है, स्त्री शक्ति का भी एक पावर है, यू हैव टू कीप दैट पावर विथ यू। और अगले बंदे को ये पता लगाना है कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, और वो शांत भाव से भी कर सकते हैं। मैं आपको ये कहूंगी कि जब ये मुद्रा करने लगते हैं तो ये पावर अंदर से, अगर वो लेडी में उसको फेस करने की शक्ति नहीं है तो ये मुद्राएं उसको वो पावर देती हैं। बीट लेडी और मैन, कई बार ऑपोजिट सिचुएशन भी होती है, राइट? इट इज नॉट ऑलवेज द लेडी इज सफरिंग, इवन समटाइम्स द मैन इज सफरिंग। तो दोनों के लिए ही इक्वल है। तो ये मुद्राएं जो हैं ये रिलेशन सुधारने में मदद करती हैं। जब आपके अंदर का वो पावर जगने लगता है तो ऑटोमेटिक सामने वाले को समझ में आना लगता है कि ये अब मेरा बहुत दिन ये ड्रामा नहीं चल सकता है, और वो चेंज आता है। दैट आई हैव सीन विथ मेनी। क्योंकि
आपके अंदर के पावर को आपने समझा नहीं है। तो ये देखिए, एक तो आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट है, या आपके अंदर जैसे हमारे अंदर ऐसा होता है कि हाँ मैं तो ये कर ही नहीं सकती, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो जब आप ये नेगेटिव थॉट को निकालना और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैं दूसरी मुद्रा इंट्रोड्यूस करती हूँ, दैट इज अपान मुद्रा। ओके, दैट इज रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब टिप टुगेदर। ये जो है ये क्लिंजिंग मुद्रा है। अब ये क्लिंजिंग मुद्रा मतलब क्या है, और दूसरा क्या है कि जब आप ये करते हैं तो रिलेशनशिप जब आप सुधारने की बात करते हैं, तो एक तो आपके मन में किसी के भी प्रति जो है एम्पथी का भी भाव होना जरूरी है। कई बार कुछ लोग, उसका कोई एनवायरनमेंट ऐसा रहा होगा कि उस वजह से उस व्यक्ति का ऐसा स्वभाव बन गया है, राइट। तो अगर आप उसके साथ एम्पथी रखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आ रहा है, तो धीरे धीरे आपका बिहेवियर भी उनको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, दैट इज पॉसिबल। अब उसमें आप मुद्रा करेंगे तो भी उसको असर पहुंचता है, ये मैंने देखा है, क्योंकि आपके अंदर का बदलाव ऑटोमेटिकली उसको चेंज करने लगता है, अब वो करें चाहे ना करें। ओके, क्योंकि आपका ऑरा उतना बड़ा होता जाता है जिस ऑरा का भी प्रभाव आपके आसपास वाले लोगों को पड़ता है। ओके, तो ये जो है अपान मुद्रा आपका ऑरा भी क्लीन करती है और आपको स्ट्रेंथ भी देती है। किस तरह से कि आपके अंदर का जो आपके अंदर का जो मैल है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सबको भी ये दूर करने में हेल्प करती है। कोई भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसको भी ये दूर करने में हेल्प करती है। आपके गट को स्ट्रेंथ देती है। अभी गट को स्ट्रेंथ देती है, आपको एलिमिनेशन में हेल्प करती है। तो गट को स्ट्रेंथ देती है मतलब क्या, आपका गट सुधरता है। और कई लोगों को अगर आप देखेंगे, किसी को आपने कॉन्स्टिपेटेड आदमी को देखा है, उसका चेहरा देखा है कभी, कभी किसी बहुत के सामने? चिड़चिड़ा स्वभाव होता है उनका, बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव होता है। करेक्ट, बहुत चिड़चिड़ापन होता है उनमें, और कोई भी आया तो उसके ऊपर बरस पड़ेंगे, क्योंकि दे डोंट हैव देयर ओन कनेक्शन। उनको इतना इरिटेशन हो रहा है, एजिटेशन हो रहा है, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू रिलीव देमसेल्व्स। वो उन्होंने जो अंदर किस भी कारण से, कॉन्स्टिपेशन के पीछे बहुत सारे कारण है। ओके, तो वो जो है, जब आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, आपके अंदर की स्टबननेस भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन का कारण होती है, राइट। तो ये जो अपान मुद्रा है वो आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ करती है। आपके अंदर का जो कचरा है, किसी भी तरह का कचरा, उसको निकालने में हेल्प करती है, ठीक है। और वो जब निकल जाता है तो आपका मन शांत ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप सुबह अपना बॉबल मोमेंट करके आने के बाद आपको कैसा फील होता है? एकदम हल्कापन फील होता है, यू फील रिलैक्स्ड। व्हाई यू फील रिलैक्स्ड? क्योंकि जो अंदर कचरा भरा था वो निकाल दिया, इजंट इट? तो इट इज गिविंग यू लॉट ऑफ प्राण। जो जगह रोकी हुई थी वो गई, तो आपके अंदर फ्रेश प्राण आए, राइट। तो ये अपान मुद्रा आपको उसमें हेल्प करती है। ओके, और जब हम ये कोर्स में सीखते हैं तो हम ये सीखते हैं कि ये अंदर किस तरह से हेल्प कर रही है हमारे पंच तत्वों को, पंच वायु को, हमारे पंच कोशों में, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, और वो किस तरह से ये जो हमारा साइंस है वो हेल्प करता है, दैट वी अंडरस्टैंड इन डिटेल। तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी खुद की मुद्रा भी बना सकते हैं। आपको ये पता लगता है कि ये कौन से दोष पे प्रॉब्लम आ रही है, त्रिदोष, जैसे वात पित्त कफ, जैसे आप ले लो तीन गुण सत्व रजतम, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे शरीर के इम्बैलेंस का कारण है। और ये मुद्राएं जो हैं वो हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं।
कभी कोई तत्व जो बढ़ गया उसको भी बैलेंस करना है, कोई कम हो गया उसको भी बैलेंस करना है, राइट। तो ये एक बैलेंस की बात हुई, मगर कभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो हमको उसको कम भी करना पड़ता है। तो जब हम टिप पे टच करते हैं अपने अंगूठे से कोई भी तत्व की फिंगर पे, तो वो हम क्या कर रहे हैं, हम बैलेंस कर रहे हैं उन एलिमेंट्स को। ओके। और जब हम थंब को किसी भी एलिमेंट के नीचे लगा देते हैं तो वो एलिमेंट बढ़ जाता है हमारे बॉडी में। और जब हम इस एलिमेंट की फिंगर को नीचे टच कराते हैं अंगूठे के बेस पे, तो वो एलिमेंट कम हो जाता है। जनरली हमारा योग क्या कहता है, समत्वम योग उच्यते। तो हम सम में रहने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलिए आज हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। एवरीबडी just bring both the palms together in front, and what you do, you start tapping all the 5 fingers. Start tapping gently, not very hard, and keep your eyes closed. Keep on doing. और अपनी सांसों पे ध्यान रहे, सांसें बराबर चलती रहे, स्लो gentle breath, and you are enjoying the process. और साथ में ये भी ध्यान रहे कि आपको क्या अनुभव हो रहा है, उस अनुभव को महसूस करते रहें। अब थोड़ी सी गति बढ़ाएं, थोड़ा फास्ट करें। फिर से थोड़ा स्लो करें। अब जो है स्टॉप करें और दोनों पाम्स एक दूसरे के सामने रखें, थोड़ा सा ही अंतर। और उसके अंदर की एनर्जी को महसूस करें। अब थोड़ा सा पास में लाएं, अपने दोनों हाथ के पंजों को टच मत करिए और थोड़ा सा दूर ले जाएं। एंड नाउ जेंटली ओपन योर आईज। कैसा लगा अमरप्रीत जी? मैम सेंसेशन आ रही थी। ओके। और एनर्जी फील हो रही थी हाथों के बीच में, और जब पॉइंट्स वाइब्रेशन लग टच रहा था मैम। करते हैं तो वो मतलब फील हो रहा था अंदर भी। ओके, वाइब्रेशंस महसूस हुए मैम कि अपने यहाँ आप पे वाइब्रेट कुछ की तरफ शिफ्ट खींच फील रहे हो हैं रहा दोनों। था, समथिंग यहाँ पे मैग्नेटिक हाथ अजीब सा एक एनर्जी दूसरे की कुछ ओर फील हुआ, हाँ, खींच रहे हैं ऐसे लग रहा था एक हल्का वाइब्रेशन कुछ फील हुआ मैम। वेरी गुड। मैग्नेटिक एनर्जी हुई। इसके साथ आप लोगों ने, मैंने कहा था कि सांस पे भी ध्यान दीजिए, किसी ने ध्यान दिया था? यस मैंने मैम। दिया था। बीच बीच में कूल लग रहा था। ओके। बीच बीच ब्रीज में और टूट रहा था। क्या हो रहा था बीच बीच में? टूट रहा था ध्यान, मतलब कभी इधर ध्यान जा रहा है, कभी ब्रीदिंग के पे जा रहा है, कभी पेट पे जा रहा है, ओके। मतलब
कि पर सांस को सही से आपने ब्रीदिंग हो बदलते रही है हुए कि नहीं हो देखा? रही। आपने अपनी सांस को बदलते हुए देखा? नहीं। दिस इज व्हाट इज, इट इज अवेयरनेस। जब हमको सिर्फ ये कहा जाता है कि यहाँ पे फोकस करो, तो हमारा फोकस वहीं पे हो जाता है। पर उसके साथ मैंने कहा था आप अपने एक्सपीरियंस को भी गैदर करिए, राइट? तो इसमें क्या हो रहा था, अगर आप फिर से एक बार करना चाहें तो आप करके देखिए। हम करते हैं, फिर से एक बार करते हैं, और मैं अभी आपको बताती हूँ तो आपको शायद रियलाइज होगा कि जब हमने स्लो टैपिंग किया तो हमारा जो ब्रेथ है वो स्लो चल रहा था, और जब आपने थोड़ा सा गति बढ़ाया तो आपकी हार्ट बीट भी थोड़ी स्पीड में हो रही थी और आपका ब्रेथ भी थोड़ा फास्ट चलने लगा था। लेट्स एक्सपीरियंस दैट। चलिए। यस प्रियंका जी। मैम एक बार इसका इस मुद्रा का नाम एक बार बताइए, ये मतलब इस ये क्या है? जस्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एनर्जी। ओके। Otherwise, when you are touching this, all five fingertips together, it is again a mudra, that is Hakini mudra. ओके। Okay. You might have seen this mudra with many speakers. जो बड़े orators होते हाँ हैं, हाँ। वो naturally you will see that their hands are like this. यस 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 यस। ये आपको पावर देता है, हाँ। आपके अंदर का जो पावर है, क्योंकि आपने पांचों तत्वों को यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है, अच्छा। and you are getting all the power. It's a very powerful mudra. ओके। Yes. ओके गॉट अगर इट मैम। कोई, yeah, thank you. So let's start doing it. Close your eyes. थोड़ा स्लो कर रहे हैं स्टार्टिंग में। स्पीड को बढ़ाएंगे। फिर से स्लो करेंगे। And now gently open your eyes. महसूस हुआ कुछ अपने ब्रेथ के साथ? जी मैम, आपने जैसे कहा ये जैसा स्पीड बढ़ रहा है, ब्रीथ भी हम लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं, और जैसे स्लो कर रहे हैं यस तो ब्रीदिंग भी स्लो हो रही है। स्लो हो रही है। यस लेकिन जब मैं मेरे अपनी साथ ब्रेथ पे अपने ध्यान दे रहा था तो आई वॉज एबल टू कंट्रोल माई ब्रेथ irrespective of the speed of the finger movement. I was able to control both the speeds simultaneously. वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे साथ अलग हुआ है। मैं ओके, अगर स्पीड में कर रहा था तो मैं ये देख पा रहा था, महसूस कर रहा था कि मेरी सांस और गहरी होती जा रही है। वेरी गुड। मतलब डीप, मतलब जैसे बोलते हैं ना। एंड और फिर जब एग्जैक्टली। स्लो कर रहा था तो फिर नॉर्मल थी। तब मेरे को इतनी, मतलब स्ट्रगल कह लो या फिर क्या कह सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग कह लो। एंड जब मैं स्पीड में कर रहा था तब मुझे, जब मैं पूरा ध्यान लगा रहा हूँ तब मेरे को ज्यादा पावर लगानी पड़ रही है सांस में, मतलब जो मैंने फील किया। तो आपकी डीप ब्रीदिंग हो रही है। वेरी गुड एक्सपीरियंस। हर मैम एक का एक्सपीरियंस सही है, क्योंकि हर एक का बॉडी डिफरेंट है। ओके। मैम हाँ जी। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि जब हम फास्ट कर रहे थे तो वाइब्रेशन तो बॉडी में हो ही रहा था, बट जब स्टॉप किया, फिंगर्स जॉइंट टुगेदर एक साथ की, तो एनर्जी यहाँ पे प्रॉपर एक कहीं पे रुक गई है, और मीन्स लाइक फीलिंग वो कामनेस वाला फीलिंग आ गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। हर एक का एक्सपीरियंस सही है, क्योंकि हर एक का स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी इज डिफरेंट। किसी का सही या गलत नहीं है। मगर मेरा ये एक्सपीरियंस करवाने के पीछे का ये था पर्पस, कि ये जो हमारी एनर्जी है,
जो हम अपने लिए यूज कर सकते हैं, किस तरह से टू बैलेंस इट। तो ये जो हमारे फिंगर टिप्स है, यहाँ पे हमारी एनर्जी बहुत सारी है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 3600 नर्व एंडिंग्स हैं, और ये हमारे अंदर की एनर्जी जो है वो हम ब्रेन को सिग्नल देके रीडायरेक्ट करते हैं बाय डूइंग सिंपल सिंपल जेस्चर्स। ओके, एंड दैट इज डाइवर्टेड वेयर इट इज नीडेड, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो बहुत पावरफुल है, ब्रेन जो है वो पावरफुल है, उसको पता है कब क्या करना है, कहाँ करना है। ओके, तो ये जो मुद्राओं की प्रैक्टिस करने से लोगों को ऐसे लगता है कि इतना सिंपल जेस्चर टच करने से क्या होता है। अभी आपने तो 1 मिनट भी टच नहीं किया है इस तरह से, एंड यू ऑल कुड फील द चेंज इन योर ब्रेथ, यू कुड फील द वाइब्रेशंस। सो कैन यू इमेजिन, तो ये जो तरंगे हैं वो आपके ब्रेन को सिग्नल देती हैं। तो जहां पे भी कनेक्शन नहीं बना हुआ है आपका, वहां पे कनेक्शन बनाता है, और वहां पे वो प्राण पहुंचाता है। तो ये प्राण जो है, प्राण शक्ति, वो हमारे ब्रेथ के साथ अंदर जाती है। ओके, और उसके लिए जो है, अगर हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करना है, तो अलग अलग मुद्राएं हैं। तो हम जो है ये कोर्स में बेसिक 6 मुद्राएं सीखेंगे, जिसमें से आज हम 3 सीख रहे हैं, बाकी की जो है वो हम उसमें भी सीखेंगे। और ये तो मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है, एक सिंपल, क्योंकि 1 घंटे में मैं ज्यादा कुछ सिखा नहीं सकती। बट इन मुद्राओं से आप अगर सोच लीजिए कि आपका अपना रिलेशनशिप अपने साथ ठीक होगा, अपना बॉडी ठीक होगा, तो आपको दुनिया में सब कुछ अच्छा लगेगा, और आप दूसरों के साथ भी एम्पैथी से बिहेव कर पाएंगे, और वो आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरों में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं उन लोगों की लाइफ में ये चेंज आया है, क्योंकि मैं पिछले 6 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, मुद्राओं के फील्ड में। और मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में इस तरह से मुद्राओं के साथ ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए देखा है। छोटे छोटे आपके जो लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज, जिसके लिए हम जनरली एक भी पिल उठा के पॉपअप कर लेते हैं कि हेडेक हुआ, तो हम सिम्टम को दबाते हैं, और वो सिम्टम जो है दबते दबते जो है हमारे बॉडी में क्रॉनिक डिसीजेस लाते हैं। तो ये जो तीसरी मुद्रा के बारे में जो आपको मैं बताना चाहती हूँ वो है प्राण मुद्रा। लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड थंब टिप टुगेदर, रेस्ट 2 फिंगर्स आर स्ट्रेट। और इसको आप लेकर बैठिए और सुनिए मेरी बात, ठीक है, अभी जो मैं आगे बता रही हूँ, और आपको अनुभव होगा। आप देखिए कि आपको क्या अनुभव होता है, ठीक है। तो ये डिजीज की जो बात है, ये इम्बैलेंस की जो बात है, उसको हम ठीक करने लगते हैं, तो हमारे जीवन में से जो है दवाइयां ऑटोमेटिक निकलती जाती हैं, क्योंकि हमारे अंदर कामनेस आने लगती है, और कामनेस आने से ही जो है आपका बॉडी जो है क्या होता है, बैलेंस में आता जाता है। जब आप गुस्से में हैं तब क्या होता है, आपके बॉडी में स्टिफनेस आती है। अब वो स्टिफनेस जो है, वो आपका बॉडी कहीं ना कहीं उस स्टिफनेस की मेमोरी को स्टोर कर लेता है, उस एक्सपीरियंस को स्टोर कर लेता है। तो ऐसे तो हम कितनी ही बार गुस्सा होते हैं, कितनी ही बार चिड़चिड़ा जाते हैं, फिर हम क्या उसको क्लियर करते हैं, हमारे एनर्जी को? नहीं करते हैं। हम उसी एनर्जी के साथ चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम अपने शरीर में जो भी इस तरह के बॉडी के अंदर इस तरह के जो हमारे बिहेवियर की वजह से, या एंजाइटी की वजह से, या फियर की वजह से जो भी हम अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं, उसको रिलीज करना है, उसको जाने देना है। तो खाली वेसल होगा तो फिर अंदर प्राण भरेगा ना। तो इसकी वजह से जो है हमारे बॉडी में ब्लॉकेजेस होने लगते हैं, और जहां पे भी ब्लॉकेज होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे डिजीज होगा। क्यों होगा? जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई सपोज कि आपकी नाली है, वहां पे कचरा भर गया है, राइट, और वहां पे वो पड़ा रहा, आपने उसको क्लीन नहीं किया, तो क्या होगा, वहां से बदबू आने लगेगी, दुर्गंध होने लगेगी। यू विल फील द
कुछ तो फाउल स्मेल आने लगेगा, राइट? तब आपको पता लगेगा कि अच्छा यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, और तब आप जाके उसको साफ करेंगे, राइट? तो इसी तरह से हमारे बॉडी में भी हम कब सफाई करने जाते हैं? जब हमको पता लगता है कि अरे यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ हो गई, स्किन पे रैशेज आ गया, मतलब अंदर कुछ तो हुआ है, राइट? तो जब हमको सिम्टम आता है तब हम क्या करते हैं? सिम्टम को क्लियर करते हैं। रैशेज आया, हमने ऑइंटमेंट लगा लिया, वो ठीक हो गया, मगर वो रैशेज आया क्यों, कहाँ से आया, उसमें हम ध्यान नहीं देते हैं। तो जब आप ये मुद्रा करते हैं तो मुद्रा आपके उस रैशेज के रीजन तक ले जाती है और वहां से क्लीन करती है, तो वो रैशेज आपको दोबारा नहीं आएंगे। क्योंकि आपने अभी इस सिम्टम को दबा दिया तो वो प्रॉब्लम जो है कहीं और सीप होके चला जाएगा और किसी और रूप में वो बाहर आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, ऑइंटमेंट से हमारा स्किन रैशेज, अब तो स्किन का प्रॉब्लम चला गया, मगर जब दूसरा प्रॉब्लम आता है तब पता नहीं लगता है कि ये प्रॉब्लम को हमने दबाया था, इसलिए वो दूसरा प्रॉब्लम निकल रहा है, राइट? तो ऐसा होता है। जैसे आप समझो कि आपके अंदर, आप जॉब कर रहे हैं, आपके अंदर गुस्सा आया है, मगर बॉस है, उसके सामने तो आप गुस्सा नहीं निकाल सकते। अब वो गुस्सा लेकर आप घर आ गए और घर पे कुछ भी नहीं था, बीवी बेचारी या तो कोई भी, घर में कोई भी आपके सामने आ गया और उसने कुछ आपको बोल दिया जो आपके साथ जेल नहीं हुआ, और वो जो स्टोर किया हुआ गुस्सा आपने उस बंदे पे निकाल दिया। होता है ऐसा कई बार, करेक्ट? तो दोष किसका था इसमें? आपका खुद का था, उस सामने वाले बंदे का नहीं था। तो आपके अंदर जो भरा है वही बाहर आता है। तो वो जो भर के हम रखते हैं उसको खाली करना चाहिए। तो खाली करने में आपको ये अपान हेल्प करती है, अवेयरनेस के लिए ज्ञान हेल्प करती है, और ये प्राण जो है, वो जो आपका अंदर जो क्लीनिंग है, वो जब आपने खाली कर दिया तो उसको साफ करना और पूरा अच्छा फ्रेश प्राण भरने के लिए ये प्राण मुद्रा हेल्प करती है। ये आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, आपके अंदर प्राण शक्ति लाती है, राइट? तो अभी मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ कि हम इस कोर्स में क्या करने वाले हैं। 3 मिनट का है, और अगर आप लोगों को लगता है कि इस कोर्स में जाना चाहिए तो यू विल टाइप यस इन द चैट बॉक्स। आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस कोर्स, और इसके बाद अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो हम लेंगे, ठीक है? सो बी देयर एंड वी विल अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स। मैडम प्राण मुद्रा खोल दें अब? आप लेके रख सकते हैं, और भी जितना प्राण चाहिए आप ले लीजिए। हाँ, कोई भी मुद्रा कितनी देर की जा सकती है? मैक्सिमम 1 आवर। इट डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, ओके? और मुद्रा खाली पेट करनी है, 30 मिनट्स का गैप होना चाहिए, नॉट कंप्लीटली, मगर एज अ योगिक प्रैक्टिस आप अपने ब्रेथ वर्क के साथ करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट अच्छा रहता है, ओके? हमारी उंगलियों का खेल है, क्योंकि ये उंगलियां रिप्रेजेंट करती है 5 तत्वास को, जिनको हम सरल हस्त मुद्रास के द्वारा बैलेंस कर सकते हैं। हठ योगा इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया है मुद्रा योगा सर्टिफिकेशन कोर्स। Hatha Yoga Institute Pune, and Achal Raj ma'am gave me mudra, Shunya Vayu mudra and Trixie mudra. So thankful to ma'am and Hatha Yoga Institute Pune. जैसे मैं मुद्रास को शुरू करी, मेरी हाई बीपी की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे नॉर्मल आने लगी है। ये बहुत ही हेल्पफुल कोर्स है, एवरीबडी कैन डू इट। और इस एक कोर्स में आप सीखेंगे द एसेंशियल हस्त मुद्रास व्हिच कैन ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ। इस कोर्स में आप सीखेंगे कैसे हम डिफरेंट डिजीजेस को डिफरेंट मुद्रा से मैनेज कर सकते हैं, लाइक मुद्रास फॉर हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, वेट लॉस, वेट गेन एंड मेनी मोर। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि कैसे हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट सिस्टम्स पंच तत्व से कनेक्टेड है और कैसे इन ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को हम बैलेंस कर सकते हैं। Also, we will learn some practical mudras and guided mudra meditations in this course. इस कोर्स में हम मुद्रास की साइंस और हिस्ट्री को भी एक्सप्लोर करेंगे।
पहले ऐसा लगता था कि मुद्रा से कैसे कोई डिजीज ठीक हो सकती है, क्योंकि उसका लॉजिक समझ में नहीं आता था। इतनी छोटी छोटी चीजों से सब ठीक हो सकता है। लैंग्वेज थी जो कोर्स के, मतलब हमको जो भी पीडीएफ मिला है बहुत इजीली समझ में आया, उसको कनेक्ट कर पाए। मटेरियल तो बहुत अच्छा था कोर्स का। ये सारा कुछ होलिस्टिक वे में हमने सीखा कि पित्त दोष क्या होता है, वात दोष क्या होता है और कफा क्या होता है। जो 6 बेसिक मुद्राएं हैं वो मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी हैं। Let me share you the special features of our Mudra Yoga certification course. Get training from teachers who are not just government certified but also internationally affiliated with the Yoga Alliance USA. Get study material for deeper understanding and future reference regarding to Mudra philosophy. कोई भी सेशन मिस हो गया है तो टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग मिलती है हर एक सेशन की। कोर्स खत्म होने के बाद आपको मिलती है सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी ऑफ आवर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, जिससे आप अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सो लर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। घर बैठे बैठे ऑनलाइन बनिए एक मुद्रा थेरेपिस्ट। मुद्रा योगा से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। मतलब अभी ऐसा है कि मैं अपने कोई भी प्रॉब्लम को अपने फिंगर टिप्स के साथ में क्योर कर सकती हूँ। हनुमानासन के प्रैक्टिसिंग के दौरान मुझे थाइस में बहुत सारा पेन हो रहा। बाय होल्डिंग दिस मुद्रा माय पेन वाज गॉन एंड आई फील वेरी रिलैक्स्ड। आज के टाइम पे लोग बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं और आप उन सभी लोगों को और खुद को भी मदद कर सकते हैं बाय बिकमिंग अ मुद्रा थेरेपिस्ट। और ये मुद्रा थेरेपिस्ट बनने के लिए आपको किसी एक्सपीरियंस, कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है। इवन अ फ्रेशर कैन डू दिस कोर्स। वी आर अ रजिस्टर्ड योगा स्कूल विद द योगा अलायंस USA for 200 hours as well as 300 hours. Registered and authorized yoga school under World Yoga Federation and International Yoga Organization. Authorized learning center with the All India Vocational Education and Training Council. Also, we are a member of the Indian Yoga Association. Our quality and standards are also certified by the ISO. So if you want to master the science of Hasta Mudras, you can connect with our yoga counselor for further details. Thank you. क्या आपको पता है ये सारे डिजीजेस? So, you understood what is the how this course is going to be. I will still take you that this course is starting from 23rd, that is tomorrow. It is the evening course and it will be 8 to 9 evening course, right? And then it is the fees for it is 5,999, and if you are already you have done any course from the Hatha Yoga, you get the family member discount, and you can register yourself right now with 1,999, and after joining the course also the rest of the fees you can pay. Okay, and in this, as we saw, that you will be getting certificate. 2 certificates will be given. One will be from the Hatha Yoga Institute and the other is from Akhil Bharatiya Vyavasayik Vidya Evam Prashikshan Parishad. So these 2 certificates, they will be given physically also, they will be sent to you, and online also you will be getting in the convocation, and one soft copy will be given to you, hard copy will come to your place. Right? And the syllabus, as we understand, that introduction to mudras, science behind mudras, the 5 tattvas and their mudras, then detailed mudra practices, disease management, all this will be there. And as I mentioned earlier also, that we will be seeing the connection of mudras not only with your physical body, but with the psychological, because mudras can cure your psychological issues also, right? I did not share many, I could not share today many examples because we took the very different topic today somehow, and we rolled around. But there are so many experiences of people which we saw right now in the video also. And epilepsy kind of diseases also have been cured with this. I have many cases. And now doctors are also recognizing this mudras, and they are also supporting us, that they are giving us the clients.
whom we can help. And we have that feeling that every house, one person should learn this mudra practice so that small medicines can go out of your house. Okay. Because otherwise we are running after the doctors, and then one doctor will take you to the other doctor, right? So if you learn these mudras and practice regularly, you will see the change. For last 6 years, touch wood, I didn't have to go to the doctor. And I started this mudra practice with my health issue. And I cured myself with the help of yogic practices and mudras. Mudras played a big role in that. And from then, I am teaching these mudras to everyone, anywhere, anytime. Because mudras can be practiced anywhere, anytime, in any condition. Even in the hospital, and anyone, this young child can also do that. Okay, so any other question you have? मैम मुद्रा का अभ्यास चलते हुए, खड़े होकर या बैठकर, लेटकर कैसे भी कर सकते हैं? कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये योगिक प्रैक्टिस है. अगर आप ब्रेथ वर्क के साथ करोगे तो आपने खुद अनुभव किया कि आप एक सिंपल सा जेस्चर कर रहे थे तो आपके प्राण, आपका ब्रेथ कैसे रीडायरेक्ट आपको कर रहा था, राइट? आपका ब्रेथ कहीं डीपर जा रहा था, कहीं स्लो हो रहा था, राइट? सो दैट पावर इज देयर विथ मुद्रास. ओके, तो अगर आप शांति से सीधे बैठ के करेंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो है वो आपके सिर्फ फिजिकल लेयर पे नहीं काम कर रहा है, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल. ये स्पिरिचुअली आपने देखा होगा कि कई जो सेंट्स हैं, राइट, उनके हाथों में भी आप देखोगे इधर ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा, राइट? तो ये आपका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी करता है. और जब आपके अंदर का सेल्फ जागेगा तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन इज फॉर श्योर. आपके अंदर इतनी कामनेस आती है और जो स्थिरता आती है, जो आदमी जिसके लिए तड़पता है, राइट? लोगों को नींद नहीं आती है, मगर ये मुद्राएं करने के बाद आपके अंदर जो बदलाव आते हैं उससे आपकी नींद की क्वालिटी भी इतनी सुधर जाती है, राइट? तो यू प्रैक्टिस एटलीस्ट, इवन ये 5-6 मुद्राएं आप रेगुलरली करते हैं तो इट इज मेंटेनिंग योर हेल्थ, राइट? रेगुलरली. अभी जब मैंने ये सेशन शुरू किया उससे पहले एवरी संडे आई हैव दैट 1 hour वी डू दिस मंत्र के साथ मुद्रा. इट इज सो पावरफुल, सो पावरफुल. यस प्रियंका जी. मैम, सपोज आपने 6 मुद्रा की बात की, जितनी भी मुद्रा है, सपोज मुझे 5 मुद्रा आती है, 6 या 8 मुद्रा आती है, तो मैंने अगर प्रैक्टिस करना शुरू किया तो क्या मैं वन आफ्टर अनदर कर सकती हूँ या मुझे ब्रेक दे के करना पड़ेगा? कर सकते हैं, मगर उसके बीच में जब आप मुद्रा चेंज करते हैं तो यू रब योर palms एंड ब्रेक द, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ लूप, वी आर क्रिएटिंग अ सर्किट. ओके, सो ये जो एनर्जी सर्किट आपने क्रिएट किया था तो थोड़ा सा हाथों को हिला लो और उसके बाद आप करिए. ऐसे मैम कितने देर तक करनी चाहिए? आपको ये भी मैं बताना चाहूंगी कि ये जो जिन मुद्राओं की हम बात कर रहे हैं, दे आर बेसिक मुद्रा. दे कैन बी डन बाय एनीवन, एनी टाइम, इन एनी कंडीशन, राइट? बट जो थेरापेटिक मुद्राएं होती है, बेसिक और थेरापेटिक मुद्रा में अंतर ये है कि आप नॉर्मल, जैसे डोलो है वो ओवर द काउंटर आपको मिल जाएगी और एंटीबायोटिक आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, और वो जब तक आपको लेनी है तब तक ही लेनी है, उसके बाद बंद कर देनी है. दैट इज द डिफरेंस इन थेरापेटिक मुद्रा एंड बेसिक मुद्रा. ओके, तो व्हाट इज द time period of this course is 15 days. So sorry I missed that. Thank you for asking. That will be starting on Monday. And इसमें हाँ, जब सर्टिफिकेशन मिलता है तो उसके लिए एक एग्जाम होता है आफ्टर द कोर्स इज ओवर. 2 weeks का कोर्स है. मंडे टू फ्राइडे इज द क्लास, मंडे टू फ्राइडे. तो 2 week में वो खत्म होता है और नेक्स्ट मंडे जब कोर्स खत्म होने के बाद देयर इज अ एग्जाम. ओके,
एंड उसके बाद कॉन्वोकेशन में आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके डेट्स आपको पहले से बता दिए जाते हैं। जनरली कोर्स खत्म होने के बाद तुरंत एक दिन में ही होता है, या कई बार अवेलेबिलिटी नहीं होती है मैम की तो बाद में होता है। सो आई विल बी योर टीचर फॉर द कोर्स एंड 8 to 9 टाइम है, 15 दिन का कोर्स है। और इसमें जो है हम पूरी डिटेल में सारा समझते हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं, और लोगों के कई सारे प्रॉब्लम्स जो हैं इन 15 दिनों में भी ठीक होने लगते हैं, इतने एक्सपीरियंसेस हुए हैं। So anybody can join. So please let me know who all are interested. You can type the yes in the chat box so that from our office they will connect with you. And if you have still any query, you can ask and you can send the message or you can contact us. Batch is starting from 23rd, that is tomorrow. योर लेवल 3 कोर्स इज completed. कब आपका कंप्लीट हो रहा है अमृता जी लेवल 3? अच्छा, प्रेग्नेंट वुमन के लिए जो आपका सवाल है, तो पूजा जी, प्रेग्नेंट वुमन भी ये सारी मुद्राएं कर सकते हैं। सिर्फ अपान मुद्रा जो है उसका जो है आपको स्टार्टिंग में 9 मंथ तक उनको 2 से 3 मिनट ही देना है, और ये जो मेंटेन करने के लिए है हमको 5 से 10 मिनट ही करनी है मुद्रा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस रिलेटेड फिर हमको ज्यादा करनी होती है। एंड यस, 1 मिनट टाइम किसको चाहिए था? कुछ तो मैसेज है, आप अनम्यूट करके। हाँ, शशिकांत जी। ओके, शशिकांत जी निकल गए हैं शायद, हैं? अच्छा, बोलिए, आप कुछ पूछना चाहते थे? अच्छा, मैम हाँ जी, बोलिए। लास्ट क्वेश्चन यस, मैम, जैसे हर एक मुद्रा अगर मैं 3 मुद्रा बैक टू बैक करती हूँ, कितनी हाँ। देर करना चाहिए? कितनी आपको, जैसे मैंने बताया कि ये जो बेसिक मुद्राएं हैं वो आप 5 से 10 मिनट डेली कर सकते हैं एंड यू विल सी द चेंज। सिर्फ आपको और एक रखना है कि आपके पैरों के नीचे मैट होना चाहिए। अगर आप चलते फिरते कर रहे हैं तो पैरों में कुछ रखिए, सॉक्स रखिए या स्लीपर्स रखिए, क्योंकि ये एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं हम, तो हमारी एनर्जी जो है बॉडी में रिटेन होनी चाहिए, राइट? बैठ के भी हो सकता है या मैट पे ही बैठना पड़ेगा? नहीं, आप सोफा पे बैठिए, चेयर पे बैठिए, मगर चेयर पे बैठेंगे तो नीचे मैट रख दीजिए, तो पैर जो है झुला के मत रखिए, पैर उन पे मैट पे रख के कर सकते हैं, राइट? आप बेड में, सोफा में, कहीं पे भी, इवन मूवी देखने जाते हैं वहां पे भी कर लीजिए, तो आपको फिजिकल बेनिफिट तो मिलेगा ही 100%, राइट? मगर आप स्पिरिचुअली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली सारी तरह से अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो आप योगिक क्रिया के हिसाब से सुबह में अगर करते हैं, शाम को मैं ये कहती हूँ क्योंकि आपकी एनर्जी बढ़ती है इसमें, तो सूर्यास्त के बाद आई ऑलवेज से दैट ट्राई टू अवॉइड। मगर कुछ मुद्राएं हैं जो हम सोने के पहले, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है इंसोम्निया की, उनको देते हैं, राइट? तो दैट कैन बी डन। एनी अदर? थैंक यू मैम। मैम, मेरा अभी ऑलरेडी ये लेवल 3 का मैंने जस्ट 1 वीक पहले ही हमारा बैच स्टार्ट हुआ है 16 ओके, तो टाइमिंग इज सेम? नहीं, मेरा आफ्टरनून का है, बट इवनिंग का मेरा ऑलरेडी एक दूसरा कोर्स भी चालू है, तो उसमें मेरा टाइमिंग रहता है 8 to 10। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ ये 1-2 महीने बाद मैं कर सकती हूँ ना? हाँ, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। एक बार एक काम करिएगा, आई थिंक देयर इज सम डिस्काउंट गोइंग ऑन राइट नाउ, सो आप ना कांटेक्ट कर लीजिए ऑफिस पे और काउंसलर से बात कर लीजिए, तो आप अपना, मुझे लगता है कि कुछ अमाउंट पे करके आप अपना डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं और ब्लॉक कर सकते हैं अपनी सीट, राइट? तो वो आप कर लीजिएगा, सो दैट यू कैन गो अहेड इन द नेक्स्ट बैच ऑल्सो।
मैम स्टडी सेम केस विद मी। को ऑनलाइन भी मिलता है और वो आपको पीडीएफ शेयर किया जाता है। मैम हाँ जी। सेम केस मेरे साथ भी है। सो मैम अच्छा। मैं भी 3rd लेवल का भी कोर्स कर रही हूँ योगा का। तो ओके आफ्टर दैट आई विल ज्वाइन। ओके, आप ऑफिस में ये अपना सीट बुक करा लीजिए। आई विल सजेस्ट दैट। ठीक है। मीनाक्षी जी एंड भूमि जी, आई विल ऑल्सो अपडेट देम that they should contact you and guide you for the further what to do, right? Anybody else has any query? I hope all of you enjoyed the session and I loved all of the participation, all of you. That is very good. Yes, Amarpreet ji, I hope you Thank you, like ma'am. the session. Yeah, thank you. यस Thank you मैम, so much. थैंक यू सो मच मैम। Thank you. थैंक यू मैम। Thank you, Thank ma'am. you. थैंक यू मैम। Thank you.